You know, we've heard and we believe that learning never ends. We keep learning till the end of our lives. Learning means we want something, isn't it? So we die a pauper. We die miserably because we could never learn. We could never learn. It never ends. Don't believe this. It must end. It must end. A teacher knows the subject. The student says, yes, I want to learn it, but teacher knows the subject. That's how he's teaching. So we should not believe that learning never ends. You join a master's course or a graduation, doesn't it end? It must end. You can't keep sitting in your MBBS class whole life. It'll be very stupid. Any course you join, you must finish it and then pass out. And now you know the subject. Believe me, if the learning never ends, then why is there a subject called Vedanta? What is Vedant? End of learning. The meaning of Vedant is what? End of learning. There is a subject called Vedant, means end of all learning. If you open a book or a scripture, it must end someday. So spirituality is not to continue to be a student for the end till the end of your life. Student means sick, after all. Finally, there should be no difference left between the student and the teacher. Otherwise, teacher is useless. If a teacher could not teach you a subject, then teacher is also useless and you are also useless. Logical. So, but if I say the Sikh must become the Guru, you might call it blasphemous because you are already convinced that it cannot be. It cannot be. You are convinced, and you are convinced that learning never ends. Well, then so be it. Tathastu. But logical it is that learning should end so that you are a free man. Jesus would not say you will continue to toil, you will continue to learn. He would say you shall see the truth and truth will liberate you. That means to say you will attain to that ultimate wisdom. Thereafter, there will be no seeking left, there will be no learning left. You will be free, you will be liberated. एक ओंकार, Satnam, Karta Purukh, Nirpau, Nirvair. No, till when will you keep reciting it? You can do that if you want to. But what is it saying? That your name is ek Omkar, you are not the body, you are not the intellect, you are not all this, you are love, you are communion, you are Sayujya, you are Mukta already. But you don't want to believe it? Well, then you continue. Carry on. Keep sitting in your class whole life. You have to pass out and imbibe what is being taught. आत्मा कभी जन्म नहीं लेती, कभी मरती नहीं। तो आप कब तक मरते ही रहेंगे, जन्म लेते ही रहेंगे? आप आत्मा है ना, आत्मा मतलब मैं है। आत्मा मतलब मैं अपने आप को मैं नहीं बोल रहा, आप भी तो मैं ही बोलते अपने आप को। एवरीबडी, ईच वन ऑफ यू जन्म नहीं लेता, मरता नहीं है, निरपाव है, निर्वैर है, अजूनी है, जन्म नहीं लेता। आप
जन्म नहीं लेते, आप मरते नहीं. इफ यू एक्सेप्ट दिस, एक्सपीरियंस इट, उसके बाद व्हाट लर्निंग, you become one with the truth. And how will it happen? With love. Guru, Guru Prasad, with love. एक ओंकार, गुरु प्रसाद. जिना भेटिया मेरा पूरा सतगुरु, तिन हरि नाम दृढ़ावे राम राज. जिसको पूरा का पूरा गुरु मिल गया, वो एक ओंकार हो गया, वो जुड़ गया, वो अकेला नहीं रह गया. वी आर सफरिंग बिकॉज वी आर alone. We are lonely. We haven't attained to that oneness, which is yoga, which is kaivalyam. एक हो जाने के लिए हम पैदा हुए, और एक कैसे होंगे? प्रेम से ही तो होंगे. एक हो जाना मीन्स टू लव समथिंग, लव समवन. Even learning is to love that subject so that you become the subject. And when you become the subject, then you're no more the object. You are dematerialized. Then you're free, you're liberated. Whatever may be happening to this body, it will keep happening. It'll become old, it'll die also. But you never die. You never die. You don't need to learn anything. You are love. You're already united. Already. Bhaktya mam abhijanati यावान्यश्च अस्मि तत्वतः. जो मेरे से प्रेम करता है और मेरे को, मेरे तत्व को जान लेता है, जो मैं हूं, जितना मैं हूं, जैसा मैं हूं, मेरे तत्व को जान लेता है, मेरे आत्म परमात्म रूप को जान लेता, मेरे एक ओंकार रूप को जान लेता. उसमें और मुझ में कोई अंतर नहीं रह जाता. फिर गुरु और सिख में कोई अंतर नहीं रह जाता. जिना भेटिया मेरा पूरा सतगुरु, तिन हरि नाम दृढ़ावे राम राज्य. वो तो नाम स्वरूप हो जाता है, नामदेव हो जाता है. हिस्ट्री ज्योग्राफी की बात नहीं हो रही. नामदेव इज नॉट ए हिस्टोरिकल पर्सन. यू आर नामदेव. वी ऑल आर नाम स्वरूप. कुछ जानने भूलने के लिए है नहीं. बस आप एक ओंकार हो, आप ओम हो. आप आदमी नहीं हो, जानने वाले नहीं हो. आप इस जानकारी से परे हो. Then you are liberated. You shall see the truth and truth shall liberate you. जिनी सतगुरु पुरख मनाया, तिन पूज्य सब कोई. जो गुरु के साथ एक हो गया. देखिए, from your material eyes, try to think, what did Radha attain in life? अर्जुन तो चलो ठीक है, राजा था, जो भी था. राधा तो बेचारी, ना तो वो होम मेकर थी, ना तो कोई प्रोफेशनल थी, ना तो उसका कोई कारें थी या घर बार था. कुछ भी तो नहीं था उसके पास. द मोस्ट मिजरेबल पर्सन, इफ यू थिंक फ्रॉम मटीरियल आइज, उसके पास तो कुछ भी नहीं था. मगर हम तो बड़ी चीज समझते हैं राधा को. हम तो राधा को कृष्णा ही समझते हैं. यस, राधा और कृष्णा में कोई अंतर नहीं. वर्ल्ड डिड नॉट मैटर टू हर. कोई बात करते हैं उसके बच्चे कितने थे कि नहीं थे. उसके हस्बैंड का नाम तो हम जानते हैं, बट वेल, शी वॉज, उसका तो घर भी नहीं था. वो तो वृंदावन में बैठी रहती थी, बस कृष्णा के बारे में सोचती रहती. और हमने तो उसको बहुत पेडेस्टल पे बिठा के रखा हुआ. कैसे? बिकॉज शी एंड कृष्णा आर वन.
It was her love for Krishna which makes her Radha. And that's the only attainment in life. जिन्हें सतगुरु पुरख मनाया तिन पूज्य सब कोई। जिसकी बात बन गई गुरु के साथ, एक हो गया, उस वो तो पूजनीय हो गया। वो तो राधा बन गया, वो तो अर्जुन बन गया, वो तो उद्धव बन गया। गुरु अंगद ने क्या पाया? कुछ भी तो नहीं, लैना ने पाया, मगर वो गुरु नानक बन गया। उसके पास कौन सी, लैना जी के पास कौन सी कार थी और कौन सी कोठियां थी? बस वो गुरु नानक के हो गए और गुरु नानक बन गए। माम एव ऐष्यसि सत्यम ते प्रतिजानो प्रियोसि में, मन मना भाव मत भक्ता मत याजी माम नमस्कुरु। श्री कृष्णा फाइनली अर्जुन को क्या बोलते हैं कि जानकारी, ये नॉलेज वाले छोड़ो, भगवत गीता को छोड़ो। खुद ही बोल रहे हैं। भगवत गीता पूरी के पूरे 18 चैप्टर्स पढ़ा दिए अर्जुन को। फिर फाइनली क्या बोलते हैं? छोड़ो भगवत गीता, तुम बस मुझे प्यार करना शुरू कर दो और तुम और मुझ में कोई अंतर न रह जाएगा। मन मना भाव मद भक्ता मध्याजी बिकम माई बिलवेड। बस और कुछ मत करो, जानकारी की छोड़ो बातें। कुछ सीखने सिखाने को है नहीं इस जिंदगी में। आफ्टर 18 चैप्टर्स ऑफ भगवत गीता, श्री कृष्णा इज टेलिंग अर्जुन की भगवत गीता को करो बंद। भूल जाओ जो कुछ सिखाया। क्यों भूल जाओ? क्योंकि तुम खुद ही बोल रहे हो कुछ समझ में तो आया नहीं है मुझे केशव। क्या कुछ सिखा दिया तुमने, पर मुझे कुछ समझ नहीं है। देन इसे जरूरत भी नहीं है समझने की। तुम बस मुझ में मन लगा लो। क्यों? तुम मेरे जैसे बन जाओगे। कैसे? क्योंकि मेरा भी तो मन तुम में ही लगा हुआ है ना। जिस तरीके से मैं बेकरार हूं तुम्हारे लिए, तुम वैसे ही बेकरार मेरे लिए हो जाओ, तो तुम में और मुझ में कोई अंतर नहीं रह जाए। फिर जिंदगी में और कुछ पाने खोने के लिए रह नहीं जाएगा। निरपाव हो जाओगे, निर्वैर हो जाओ। निरपाव क्या होता है? किसी चीज का डर नहीं लगेगा। निर्वैर क्या होता है? किसी से कोई कंपटीशन या कंपैरिजन नहीं रह जाएगा। तुमको दुनिया भूल जाएगी। तुम और मैं एक हो जाएंगे। कैसे एक हो जाएंगे? क्योंकि मुझे भी दुनिया कहाँ दिखती है तुम्हारे सिवा। मैं भी तो बस तुम्हें ही चाहता हूं। तो वैसे ही तुम भी हो जाओगे। और ये शरीर ने जो काम करने हैं सांस वांस लेता रहेगा। जो भी प्रोफेशन करता है, जो भी स्टूडेंट है या जो भी कुछ करता है करता रहेगा। मगर तुम दिल से मेरे हो चुके होगे और मैं और तुम एक हो चुके होगे। हरे राम। सिर्फ प्रेम करना ही तो हमको आता नहीं है। और भगवान को प्रेम के सिवा कुछ आता नहीं है। मतलब भगवान को कुछ नहीं आता होता सिवाय प्रेम के। गुरु नानक को कोई गुरबानी नहीं आती। गुरु नानक को सिर्फ प्रेम करना आता है। और प्रेम में से जो कुछ बोलता है वो गुरबानी बन जाती है। जो कुछ भी बोलता है उसको गुरबानी ही तो बोलेंगे ना। वो प्रेम से जो बोल देता है, इट्स कॉल्ड गुरबानी। श्री कृष्णा प्रेम से जो बोल देते हैं उसको हम भगवत गीता बोल देते हैं। हम उसको याद करना शुरू कर देते हैं श्लोक समझ के। और फिर कहते हैं कि लर्निंग विल नेवर एंड, क्योंकि सारी जिंदगी हम तो श्लोक ही याद करते रह जाते। पर श्री कृष्णा ने कौन से श्लोक याद किए थे? वो तो जो बोलते थे हमने उनका नाम श्लोक रख दिया, है कि नहीं? लॉजिकली गुरु नानक को कुछ नहीं आता सिवाय प्रेम के। बुद्ध को कुछ नहीं आता सिवाय प्रेम के। वॉट एवर ही डज इज आउट ऑफ लव। Out of love, he just lives a limited span of life. We could call it 100 years or 200 years. And thereafter, the body, he exits the body. He is love. और ये तो नूर की बूंद है जो सदियों से बहा करती है। कोई मरती थोड़ा है। प्रेम कभी मरता है? प्रेम तो इटर्नल है, शाश्वत है, नित्य है, सत्य है। हरे राम, हरे कृष्णा।
Hare Krishna.